Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. As to the topic, the lingual cultural diversity in the undergrad program is the primary concern most highlighted and discussed all over the communities. Teaching practices from the psychological perspective play a very important role and so cannot be overlooked. Today, we are lucky. We are having a very renowned speaker on the topic, Dr. Muntazir Mehdi, Assistant Professor from NAML, as he's going to enlighten us with his own perspective on the topic. And I hope we all as a faculty are going to truly benefit from this. Before handing over the stage to Dr. I would request our DG, Dr. Vikas Hedasar, to say a few words as regards the topic and introduce the speaker to all of us. It's a very warm, pleasant and grateful morning to all my faculty members. And on behalf of my faculty members and myself, I welcome our valued guest, Dr. Muntazir Sahab, for being catalyst to stimulate us with respect to lingua cultural diversity in classrooms. With paradigm shift in the educational institutions around the world are educating an increasingly diverse students population. Therefore, as a teacher, we have to take into account the linguistic and cultural heterogeneity of the students. The variety of the languages spoken and the multiplicity of their cultural affiliation, it means teacher must be prepared to acknowledge, respect and understand students with substantially different cultural histories and diverse backgrounds. On the other hand, institutions in the classroom develop a sense of respect and acceptance of each other, not for each other, but for all the cultural values that other people possess. Teachers must help students to explore the cultural representation and recognize how cultural differences make the world interesting and not more divided. So our diversity should not be taken as a basis to divide us. It should be used. It should be used to unite us. Always remember that for today's school is not only a place where one acquires knowledge, it also is the place where one pools his interest, his knowledge, his background, his language, and the cultural values that he has adopted over the years itself. So it's a environment, classroom, where one learns to live together not by sharing a single language, but by embracing several to build upon common values. I'm thankful to Dr. Muntazir Sahab for being with us, and I just want to thank him in advance on behalf of Hamdard University. But let me introduce Dr. Muntazir Mehdi, and I will simply read. Dr. Muntazir Mehdi is at the moment working at the National University of Modern Languages, Islamabad. He has been teaching at the university level for over 20 years. He is an HEC approved PhD supervisor. He is President English LL International Turkey as well as Member High Commission of IKSAD Institute Turkey. He is the Chief Editor of the 2 international journals. He has been a resource person for HEC trainings in different universities in Pakistan from 2017 to 2020. Besides, he has conducted training sessions in many universities, institutions and colleges of Pakistan. He has also attended several international conferences in the world and represented NAML as a keynote speaker in 5 of them.
He has organized several international conferences in the world, including some of the Pakistani universities. He has organized over 10 national and international professional development training workshops. He has published more than 35 articles in national and international journals on English studies. So, with these comments, I would welcome Dr. Muzammil Mehdi to enlighten us on the topic that we have today. Thank you, Doctor. Thank you so much. I'm really pleased, touched, and happy. It's my first visit to the university, and I'm really thankful to the administration, director administration, for inviting me here. Well, to begin with, basically this presentation, it's sort of, you can say, presentation or interaction, kind of seminar, you can say, but it's not that is the thing that I'm going to teach something to you people. I can see some of the senior faculty members, so it's kind of an interaction, kind of the awakening, kind of refresher. All the things that I'm going to talk with you people today, you know it already, but it is just to remind you that yes, these things exist. And it's going to be kind of a mutual discursive interaction where we could find certain things. And I would try that if you could also speak with me at certain moments. There's a little difference between trainings and seminars. Since it's kind of a seminar, so where one person speaks and asks the rest of the people to talk on certain points in time. However, in trainings they are managed and organized differently. So we'll try to manage those as well in future. They're very important. Anyhow, so first of all, Assalamu alaikum to all of you. It's kind of basically I was an HSC resource person for 3 to 4 years in different universities of Pakistan. And later on I stopped working with HSC because of my certain commitments. But still, universities, they invite me and I try to go there. And the topic that I'm going to present in front of you today, this is basically my doctoral research as well. The research is in fact, for example, how we see, say, students and teachers' interactions, their existence, their survival in the classrooms, how they coexist. And this is very important, it's kind of a binary. Binary means like students, they have their own perceptions and understanding. Teachers, they have their own perceptions and understandings. Teachers think whatever we are thinking, students should know this thing. And students think whatever they need, whatever their demands are, teachers, they should understand it. So both of them, they take it for granted. My theorist, he is Kumara Badavelu. He's basically a Sri Lankan working at San Francisco University. One of his sentences I liked very much. And he says, there are many discourses in the classroom. यानी classroom के अंदर ऐसी बहुत सी बातें उस्ताद करता है. There are discourses in the classroom which even teacher is not aware of. और होता ये है कि वो बच्चा आपकी बात सुन के रात पूरी वो सोता ही नहीं है कि पता नहीं आज सर ने ये मैडम ने ये बात मुझसे क्यों की थी, पता नहीं इसकी वजह क्या थी. देखिए, all the discourses, all the talks that we try to convey, that we say to our students, हम तमाम लोग की हुई बातों को अपने पैराए में समझते हैं, ना कि बोलने वाले के पैराए में. फॉर एग्जाम्पल, जब भी बंदा यहाँ पे खड़ा होता है, उसमें आपके डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन हैं, वाइस चांसलर हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, so whenever they are telling you something, तो उन्होंने वो बात एक खास
खास अंदाज में सीखी होती है एंड दे आर ट्राइंग टू टेल यू, लेकिन जिस सिचुएशन में आप रह रहे होते हैं आप उस बात को उस अंदाज में समझ रहे होते हैं। दिस इज कॉल्ड द कॉन्फ्लिक्ट, और हम इसको इंग्लिश में कहते हैं दीज आर द कन्फ्लिक्चुअल डिस्कोर्सेज। The person is trying to say something to you and you are trying to understand it in another way. And same is the case, मैं अक्सर एक बात अपनी ट्रेनिंग्स में करता हूँ कि in the end we all are heroes। आप देख लें, आप सारे साथ बैठे हैं, until today anybody among you जिसने कभी क्लास में ये कहा हो कि एक दिन मुझसे बड़ी चबल बन गई थी, एक दिन मैंने एक बंदे से बड़ी ज्यादती की थी, एक दिन मैं कहीं जा रहा था तो मैंने कभी बड़ा जुल्म कर दिया। We never say these things। हम क्या करते हैं, आपको पता है मैट्रिक में था मैंने ये किया, मैं जब इंटर में था तो मैंने पहाड़ सर पर उठा लिया था, जब मैं बीए कर रहा था तो मैंने ये कर दिया। Like we all are heroes in the end। लेकिन what is the other side? The other side is our world is full of villains। We cannot find even a single hero, but actually we are heroes। So this tells that we are basically looking at the subjective part of our lives instead of looking at the objective parts of our lives। So being teachers, basically you people are the reformers। Classroom के बारे में ये कहा जाता है कि when students come to their classrooms, they are coming to their classrooms according to their own linguistic and cultural understanding। यानी आपके जो तलबे हैं, they are not from only one part of Pakistan। ये सारे इस्लामाबाद के तो नहीं है ना, शायद कुछ रावलपिंडी के होंगे, कुछ चकवाल के भी होंगे, शायद कुछ कराची से भी होंगे, कुछ केपी से होंगे। तो when we have got people from multifarious aspects and regions of Pakistan, तो how do you try to convey them one aspect? टीचर की जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आफ्टर having known about the subject, जो आपका सब्जेक्ट मैटर है, when teachers know about that, उससे बढ़ के ये है कि how teachers are trying to communicate to their students। For example, you may be very scholars, great scholars। आप लोगों ने शायद 25 50 200 किताबें पढ़ी होंगी। There is no question to your scholarship, right? You are not from, all of you are not from English department, you are from management sciences, you are from social sciences, you are from maybe natural sciences। So, and I'm from English department, like my area of research was language education, right? Now, but why I am interacting with you right now is that there is something which is very common that all teachers they need to know। There are people who know even who have more knowledge than you do, but they are not teachers। So being a teacher क्या होता है? Teacher is कि आप देखेंगे एक घोड़ा है, वो बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन अगर उस घोड़े के ऊपर आप एक सवार को न बिठाएं तो क्या घोड़ा रेस जीत जाएगा? तो वो घोड़ा आपका इल्म है बेसिकली, और आप उसके सवार हैं, you are the rider of that horse। You have to guide that horse। आप उस knowledge को guide करने हैं। For example, if you are a PhD and you start talking of the variables of your higher level education to the shopkeeper, तो वो तो आपको मजाक उड़ाएगा कि आप ऐसे क्या बातें कर रहे हैं। You need to talk to a shopkeeper as per the understanding of the shopkeeper। You need to talk to a rickshaw driver as per the perceptions of that rickshaw driver। So teacher का ये काम होता है, the teacher tries to identify the level of the listeners। अगर आप अपने listeners के level को determine नहीं कर पाते हैं, तो you cannot communicate things to you। आपने एक वाक़या सुना होगा, one of the students asks his or her teacher कि मेरी अहमियत क्या है, what is my significance in this society। तो उसने उसको हीरा दिया, कहते हैं हीरा लेके जाओ और ये मेरा जूता टूटा हुआ है, एक मोची के पास ले जाओ, उससे ये इसकी मेंडिंग करवा के ना तो ये हीरा उसको दे देना। We went to that cobbler, तो जब उसने उसका मेंड किया शूज तो उसको हीरा दिखेगा, मुझे 10 रुपये चाहिए। I don't know what this stuff is। उसके बाद उसने उसको किसी शॉपकीपर के पास भेजा, कहीं और भेजा। Finally he was sent to ये कौन होते हैं जो सोना बेचते हैं, जमात होते हैं, goldsmith sort of people। तो उसने उसको कहा कि कितने पैसे में इसके तुम्हें। He came and he told the whole story to the teacher। तो टीचर उसको ये कहा कि अपनी कीमत हमेशा उससे लगवाओ जो आपको जानता हो। हम teachers we need to try to understand our students। Our students they are of great worth, but at times हम उनको ज़ाहिर कर देते हैं। मेरे ख्याल में शायद ये कौन सा था एक मुझे इसका नाम भूल गया, आपको शायद याद होगा, जिसके टीचर ने उसको लिख के दिया था कि आप इंतहाई
ना अहल स्टूडेंट है, मैं आपको नहीं पढ़ाता। हाँ, तो उसकी माँ ने कहा था कि तुम्हारा टीचर कह रहा है कि ये बच्चे तो बहुत अक्लमंद है, हमसे कभी नहीं हो रहा। और बात दुरुस्त है, every student has great value, I tell you. The only thing is we need to find out the potential they have. We want our students to have a potential that we have. For example, if I like reading, so I only like those students who read, and to the rest of the students we never appreciate. If I speak better, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे वो अच्छे हैं जो अच्छा बोल लेते हैं. No, teacher has an inclusive and holistic approach. The teachers, they try to appreciate all types of students, and they try to dig out, they try to find out what good qualities those students have, and then accordingly they try to deal with them. Being a teacher, when you are talking to your students, आप एक वक्त में सिर्फ एक बंदे को देख रहे होते हैं, और how many of you know the names of all the students in your class? जिसको तमाम बच्चों के नाम याद है वो हाथ खड़ा कर देगा. That's very great. Try to call them by their names. जब आप किसी को उसके नाम से बुलाते हैं तो the person feel privileged, honored, और वो बाद में कहते हैं कि टीचर को मेरा नाम भी आता है, right? So even if they meet you in the corridor, you can simply ask them, Fawad, where are you going? तो वो where are you going को तो कम डील कर रहा होता है, वो कहते हैं मेरा नाम भी बड़ा होता है, right? तो एक interactive mutual respect का element है. Basically क्या साहब ने जो सारी बातें कर दी, मैंने कोई बातों को एक्सप्लेन करना है. I don't know उनको कैसे पता था कि I'm going to talk about all these things. Anyhow, तो let's see. आप में से आपकी कौन सी शक्ल होती है क्लासरूम के अंदर में से? These are the perspectives in the classroom. So try to look at which is your picture here. Some of the teachers, they think they are the owner of this classroom. They are the master of this classroom, and they are the ruler of this classroom. They are the president of this classroom. तो जो चाहे classroom में कर लें. It's not the case. Mostly आप देखते हैं, I read an article, उसमें मैंने पढ़ा कि पाकिस्तानी nation is one of the silliest nations on earth. यानी दुनिया के अंदर करफ्ट किस्म की nations होती हैं ना, हम किसी को सलाम भी करें तो ऐसे होता है अस्सलाम वालेकुम, वो कहता है वालेकुम सलाम. लेकिन हमें हंसना ही नहीं आता. We never compliment each other. किसी को compliment देने के लिए कितना टाइम लगता है और पैसे भी कोई नहीं लगते हैं, लेकिन वो बंदा अगले 4 महीने की इज्जत करता है. इस बंदे ने मुझे कॉम्प्लीमेंट, all the dresses that you're wearing right now, you selected them after a lot of toilsome effort. आप शॉप पे गए, आपने एक निकाला, उधर फेंका और रैंक सेट करते हैं, फाइनली यू सिलेक्टेड दैट. लेकिन आपने कभी गौर किया होगा कि जो कपड़े आप रिजेक्ट करते हैं अगले दिन जाके गौर खरीद लेते हैं. So our choices are different. It never means that my choice is the best. So there is no harm. The very first discourse that you need to generate on the very first meeting with anyone. सुबह सवेरे आप आते हैं, जब पहले अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, बस इतना कहते हैं माशाल्लाह जूता बड़ा खूबसूरत है आपका, बस इतना क्या कि आप चले जाएं, पूरा दिन वो बंदा खुश रहेगा. गाय मैंने सुबह जूता पहना था ना, क्या उसकी तारीफ हुई है. सिंपली एक बंदा तारीफ कर देना, हम सारा दिन कहते हैं कि सारी तारीफ कर रहे थे. तो वी नीड टू डेवलप दिस काइंड ऑफ डिस्कोर्सेस विद आवर स्टूडेंट्स एज वेल. अब आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट आर दीज डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स इन साइकोलॉजिकल. तो अब आपने अपना फोटो यहाँ पे देख लिया कि आपका कौन सा वाला फोटो है. वेल, responses and reactions from the students. आप देखिए कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं in the classrooms, whenever you are talking to them, अच्छा आप में से कौन से टीचर्स ऐसे हैं जिनकी हर क्लास में हर स्टूडेंट एक लफ्ज जरूर बोलता है? ठीक है. This is very important कि whenever you are teaching your students should participate. And if your students are not participating in the classroom, इसका मतलब आपको ये मैंने प्रेजेंटेशन ऐसे ही बनाई है ताकि आपको इंगेज कर सकूं. वैसे मैंने अपनी बातें करनी है आप लोगों के साथ. तो जहाँ तक आप पहुँच के बाकी बात निकाल लीजिए. Your students, you know why they listen to you. There are 3 types of strategies in the classroom. एक होता है cognitive. Cognition होता है your experiences. You try to learn through your experiences. I mean, अगर आपको टेलीकॉम का नॉलेज है और मैं आपको बताना शुरू कर दूं कि मोबाइल फोन कैसे होता है, तो आप इंटरेस्ट नहीं उसमें, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है. लेकिन जिनको नहीं पता वो फिर मैसेज करना शुरू कर देंगे, मे बी वो सेल्फी लेना शुरू कर दें, जो कोई भी काम अपना स्टार्ट, बिकॉज दे डोंट नो अबाउट दैट. सेकेंडली, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लेट्स से ऑन द टॉपिक ऑफ एजुकेशन, तो जिन लोगों को प्लेटो का, लामा जर्माजी का, एरिस्टोटल का पता होगा वो तो पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, बाकी छोड़ देंगे. बट 90%, चलिए 90 ज़्यादा हो गया, 70% ऑफ आवर क्लासरूम आर बेस्ड ऑन कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स. सेकंड पॉइंट इसमें ये होता है, बल्कि मैं आखिरी पॉइंट पर होता है अफेक्टिव डोमेन. अफेक्टिव डोमेन क्या होती है? ये बेसिकली पूरा 2 घंटे का लेक्चर है. अफेक्टिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन
एंड सोशल एरियाज, लेकिन मैं 2 मिनट में समझा के आपको आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। वो होते हैं योर बिलीव्स, योर वैल्यूज। अच्छा, आप तमाम लोग अभी अगर मैं फॉर एग्जाम्पल दीन पे बात करना शुरू कर दूँ, आप सब कान खड़े हो जाएंगे, ये कौन सी बात कर रहे हो, सुने। अगर अभी मैं आपकी कल्चरल वैल्यूज पे बात करना शुरू कर दूँ, आप सब पे बोलना शुरू कर दें मेरे साथ, लेकिन अगर अभी मैं बात करना चाहता हूँ, शुरू कर दूँ लेट्स से ओबामा के ऊपर, तो दोज ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड इन विजिटिंग यूएस, वो तो मेरी बात भी सुनेंगे शायद की बाद में, बाकी रेस्ट ऑफ यू विल नॉट बी अटेंडिंग मी। तो बेसिकली you need to try to explain things to your students with respect to their interests, their passions. For example, Wasif Ali Wasif का नाम सुनो आपने। Wasif Ali Wasif कहते हैं कि when passion and profession are the same, you don't go to work. आप जहाँ भी होते हैं ना, आप अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम है, इवन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हम डायरेक्टर टेक्निकल उसको लगा देते हैं जिसको आईटी से ताल्लुक ही नहीं होते इतना ज़्यादा, जिसको उसको दिल ही नहीं कर रहा होता। हम स्टूडेंट फेयर का डायरेक्टर उसको लगा देते हैं जो हर वक्त आपके रिसर्च पेपर लिखना चाह रहा है, राइट। तो यू नीड टू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस बंदे का मिजाज क्या है। एक बंदा फैकल्टी मेंबर ऐसा होता है जिसका दिल करता है कि ये स्पीकर गलत लगा हुआ है, देखना ये ऐसा कर दिया है, तो उसको एडमिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, यार ये काम आप करो। तो आप क्रिकेट मैच देखिए ना, क्रिकेट में क्या होता है कि जब बॉलर फास्ट बॉल करता है ना बहुत तेज, तो बैट्समैन उस बॉल को जब सीधा नहीं खेल पाता तो क्या करते हैं, यू ट्राई टू यूज दैट फोर्स, आप थोड़ा सा बॉल को रीडायरेक्ट करते हैं यू, और बॉल अपनी फोर्स से बाउंड्री के पार चली जाती है। विद लेस फोर्स यू गेट द मैक्सिमम। तो सेम इज द केस विद योर स्टूडेंट्स, यू नीड टू आइडेंटिफाई योर स्टूडेंट्स। एक हमारे हैं कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट से आप में से, हाँ, B.F. Skinner, he has talked about how people learn through conditioning and whatever, behaviorist है वो। अभी रिसेंटली हमने उनसे एक टॉक करवाई थी, वो कहते हैं कि अपने स्टूडेंट्स को जो वो चाहते हैं ना, उन्हें क्या वो पढ़ रही है, बट इफ यू गिव देम हैंडआउट्स, देखिए एक तो रेफरेंस बुक से ना दे हैव टू स्टडी बिकॉज़ दे हैव चोजन दैट कि हम जी फलां इलेक्ट्रिकल करना चाहते हैं, मैकेनिकल करना चाहते हैं, एजुकेशन में फलसफा में व्हाटएवर, बट अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाटएवर देयर चॉइसेस आर, आप उन्हें कहेंगे खुद एक हैंडआउट ढूंढ के लें, इसको पढ़ के लें, सो दे विल कम after having read and they will explain that in detail as well. So we need to try to identify the interests of our students as far as co-curricular activities, as far as co-curricular tasks are concerned. So some of the students are very much amicable in the classroom, बहुत प्यार से बात कर रहे होंगे, आपके सवाल के जवाब दे रहे होंगे, तो try to identify वो ऐसे क्यों कर रहे हैं, right? Second, if the student is disruptive, यानी आप बात करते हैं वो आपको उल्टा जवाब दे देगा। Say you are asking them to do something else, वो कहते नहीं हमसे ये नहीं होता, सर असाइनमेंट ये नहीं हो सकती, डिस्ट्रक्टिव है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए। कुछ लोग होते हैं दे आर रेजिस्टिंग। रेजिस्टेंट स्टूडेंट्स कौन होते हैं, वो बच्चा आता सबसे पहले है, बैठता सबसे पहले है। रीजन ये होती है, इसमें आगे मैं चल के बात करूंगा, थी एलिजाबेथ मिलर 2015 में शी वाज डायरेक्टर इन अ सेंटर, तो ये इसने स्कूल विजिट किया, देयर शी आस्क्ड अ क्वेश्चन टू अ स्टूडेंट, एक फीमेल बच्ची से सवाल पूछा, शी डिडंट रिस्पॉन्ड। तो वो जैसे भी मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो मैं जाके आपके डायरेक्टर से कहूँगी ये आपकी बच्चियाँ तो किसी काम की नहीं है, मैंने सवाल पूछा कि आती ही नहीं। वो आगे से प्रिंसिपल कहती है जो मैडम जो सवाल आपने पूछा है ना वो पब्लिक में पूछने वाला था कोई, उसको जवाब आता था, बट शी डिडंट रिस्पॉन्ड टू यू अकॉर्डिंगली। अच्छा, जैसे आप किसी मतलब आपकी क्लास में कोई बच्ची 18 साल की हो और आप उससे पूछे हाँ बच्चे सबके सामने शादी कब करोगी, तुम्हें दूल्हा कैसे चाहिए, विल शी रिस्पॉन्ड टू यू? शी विल नॉट। तो to certain discourses students resist। मसलन आप किसी लड़की से उसकी उम्र पूछने क्लास के अंदर क्या है, तो maybe she might not respond to you and you might come up with a conclusion or inference कि ये वो देखिए ये लड़की तो बात ही नहीं करती क्लास में। So you need to identify the questions that you are asking your students, and if you are asking them such questions they will not respond to you, and once they don't respond to you तो हमारा क्या होता है कि हम थोड़ा उसमें आ जाते हैं कि देखिए ये आप देखिए तो बोलते नहीं है, फिर हम वो थोड़ा सा अवेंचुअल हो जाते हैं स्टूडेंट के साथ और काम सारा खराब। क्लासरूम एक्टिविटी के अंदर, क्लासरूम डिस्कोर्स, नो लर्निंग टेक्स प्लेस until the situation is amicable। बच्चा गुस्से में बैठे है, आप गुस्से में तो पढ़ा लेंगे, you cannot, it's not possible for you people। तो ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है वो टीचर ने कंट्रोल करनी होती है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूँगा, कुछ स्टूडेंट्स हैं वो मतलब एंगर नाराज होकर भी बैठे होते हैं,
AOBs means कुछ और भी हो सकते हैं, you know that better। आप में से कितने लोग हैं जो इस यूनिवर्सिटी के VC बनना चाहते हैं, जिसने किसी और यूनिवर्सिटी के कर कोई भी नहीं। कहते हैं not failure but low aim is a crime। You need to be president of this country, you need to be VCs, chairpersons of HECs if you think that you have something to deliver। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, वो जैसे हदीस में है कि सारे लोग जन्नत जाना चाहते हैं लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। तो but it's not possible to go to paradise until you die। देखिए, if you want to become the vice chancellor of this university, right, जैसे if you want to become the director general of this university, how you can become, इसके एक सिस्टम है छोटा सा। वो सिस्टम क्या है कि you will have to follow the rules of this university। आप अगर कभी अपने गांव गए हो तो घर तक मोटरवे तो नहीं है ना, सड़क खराब भी होती है, तो खराब सड़क पे आप नहीं चलते, चलना पड़ेगा खराब सड़क पे ताकि आप घर पहुंच जाए। हम में से बहुत से लोग हैं जो उसका रूल्स की बात कर रहे होते हैं, रूल ऐसा है, रूल वैसा है, और क्लासरूम के अंदर भी हम बात कर रहे होते हैं, स्टाफ रूम के अंदर भी बात कर रहे होते हैं। इसका ये मतलब है कि एक रोड खराब है हमारे नजदीक, हम उस पर चलना तो नहीं चाहते लेकिन हम घर जाना चाहते हैं। इट इज नेवर पॉसिबल। I'm just telling you one sentence, if you do not like a rule, follow the rule, reach the top, change the rule। But until you follow that rule, you cannot reach the top। मसलन आप बनना चाहते हैं एसोसिएट प्रोफेसर और आप कहते हैं कि आर्टिकल लिखने हमने ये 2 नंबर है, तो बगैर आर्टिकल लिखे आप एसोसिएट प्रोफेसर की एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं? Perhaps not। So the same thing you need to inculcate into your students as well। Everything doesn't happen as per your own choices। Things happen as the systems are, and you need to follow those systems। And once you are in a position, only then you can change those systems। लेकिन without arriving at a particular place, we cannot change systems। So until your students they participate in the class, until your students they properly write their assignments, they cannot reach the top। Okay, so थोड़े से क्वेश्चन थे छोटे छोटे, मुझे आपसे इसके जवाब चाहिए। मैंने इनको रीफ्रेज करने की कोशिश की ताकि ऑफेंसिव ना हो, बट आई नीड रिस्पांस फ्रॉम ऑल ऑफ यू। अब कब चाहते हैं कि आपकी जिंदगी खत्म हो जाए? ये मुझे बता सकते हैं आप? ठीक है, सो बस जब मेरे रब की मर्जी। वो तो हमें वैसे ही बनना है, मैं वैसे आपसे पूछ रहा हूँ, वो तो अंडरस्टूड है ना। जरा I'm not entering in the circle of religion, उससे बाहर रहना है थोड़ा सा, right? कोई आपके ज़हन में एक आइडिया हो कि चले at this age, अच्छा, the only thing is मुश्किल है थोड़ा सा इसके जवाब देना। अच्छा, अगला सवाल थोड़ा और खतरनाक है। कैसे, यानी how, किस तरह से आप चाहेंगे? यानी आपको कोई बंदा गोली मार दे, या आप छत से गिर जाएं, या देखिए किसी तरीके से मरना है ना, आप पहले चॉइस आप भी दे दीजिए। इन दोनों सवालों के जवाब से पहले जो आखिरी सवाल है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल में, ठीक है? व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल, यानी कौन सा गोल आप अचीव करना चाहते हैं, इसके बाद आप मरना चाहते हैं? देखिए, ये वो चीज़ें हैं जो परहैप्स हम सोचते नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ये चाहते हैं कि मैंने 1 करोड़ रुपया कमाना है, तो अगर हम आज आपको 1 करोड़ रुपया दे दें तो आप नौकरी छोड़ देंगे, घर बैठ जाएंगे? So please, अपने सबसे पहले you need to set your own goals and then set the goals of your students। आज आपको मैं एक एक्टिविटी बताता हूँ, try to, ऐसे जब आप थके मुझे बता देना है, वैसे मैं try to wind up within 70 minutes, not more than that। क्योंकि इतनी क्लास में हमें किसी भी कहती है कि आप 1 घंटा 15 मिनट की क्लास का स्ट्रेच पढ़ा सकते हैं, फिर 15 मिनट की ब्रेक देके फिर अगला वैसे 3 घंटे की क्लास होती है, but we'll just take half a class of that। स्टूडेंट्स की तकलीफ का भी एहसास हो जाएगा, वो भी क्लियर करते हैं। Okay, the activity is you go to your class and ask your students the same question कि after 10 years, बल्कि इस सवाल से भी है, after 10 years where do you see yourselves? And believe me, the responses you will get from your students, जी मैं content writer हूँगा, मैं स्कूल में टीचर हूँगा, मैं our aims are very low। क्योंकि aims हमारे low होते हैं, इसलिए फिर पढ़ाई में दिल भी नहीं लगता। अब देखिए, बस कराची जा रही है और एक बस चकवाल जा रही है, अब दोनों की स्पीड का अंदाजा लगा लें, दोनों के ड्राइवर्स की तैयारी का अंदाजा लगा लें।
कहते हैं कि जिंदगी के इब्तिदाई दौर में भी कम से कम अर्श तक इंसान को परवाज करना चाहिए, और जब जुम्बश में आ जाए परोब वाले हयात अर्श से परवाज का आगाज करना चाहिए। So basically you need to ask your students to have greater goals, and if they have greater goals you will never have problems with your students की वो तैयारी करके नहीं आते, वो टाइम पे नहीं आते। आप खुद टाइम पे जाके देखिए, वो खुद बहुत टाइम पे आ जाते। So basically you are the trend setter, you need to set that trap for your students। जी इस वक्त मुझे बताएं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको अपनी शक्ल नजर आ रही है? आपको अपनी शक्ल नजर आ रही है? That is the reason. That is the reason. Believe me कि हमें कुछ लोग बुरे लगते हैं। Why? Because we can't see. मुझे नहीं पता कि मेरे माथे पे या मेरी दिलदार में कुछ लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, लेकिन I am behaving as if I am perfect. So this is the reason we need to look at our students from the same aspect. Why? Because our students, they are our future generation. आप देख लें, मैंने एक टीचर से कहा अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, मैंने कहा मैडम वो हमारे कैंपस के स्टूडेंट है, तो बेचारा बड़ा परेशान है। उसको पता क्या जवाब था? कहते हैं सर आपको क्या पता, हमने बड़ी मारें खाई हैं। तो मैंने कहा आज यू अवेंजिंग ऑन हिम, अब आप उसका बदला ले रही हैं उससे, क्योंकि आपके टीचर आपके साथ साथ थे, तो यू आर डूइंग द सेम विद योर स्टूडेंट्स। नो, basically if you give respect to your students, if you tell them that yes they can do wonders, believe me they will do wonders. Because we don't give them respect, we think that they are the stupid people on earth, and try to give them respect and then see what your students are going to do with you people. तो देखिए या तो आप शीशे में देख सकते हैं तो आपको अपनी शक्ल नजर आएगी, or you can ask your colleagues. And normally feedback given by students during classes is fake, वो ठीक नहीं होता है। मुझे याद है हम भी हमारे 4 टीचर थे बैचलर्स में, और हम चारों से कहते थे कि सर यू आर माय बेस्ट टीचर, ठीक है ना? तो दिस इज व्हाट हैपेंस अमंग स्टूडेंट्स व्हेन दे से। अच्छा ये एक चीज है, इसको यू नीड टू आइडेंटिफाई योरसेल्व्स कि व्हाट एक्चुअली यू थिंक अ टीचर इज। क्या होता है टीचर? इंस्ट्रक्टर है, कम्युनिकेटर है, सोशल रिफॉर्मर है, या सिलेबस कंप्लीशन मशीन? Where do you rate, where do you situate yourselves? Majority last one. The last one. I always ask this question to my faculties, my colleagues कि ये syllabus complete कैसे होता है, मुझसे तो नहीं होता। I mean, do you think that just reading that book completes the course? That is basically the internalization. Until the concept has been internalized. अब इसको how you can check that? एक दिन मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ एक हरकत की, मैं आपको बताता हूँ, आप भी करके देखिए, बड़ा मजा आएगा। I gave them assignments. वो assignment करके ले आए सबसे। I took assignments from all of them and I sat in the back. और मैंने जब टॉप पे देखा ना, उसमें साइका, मैंने कहा साइका कौन है? सर, मैंने कहा स्टेज पे आ जाओ। मैंने कहा tell what you have written in the assignment. And then I started asking her questions from the assignment. मैंने कहा मुझे ये लिखा है, क्या मतलब है इसका? You know how many sentences she uttered? 0. क्योंकि उसने किया हुआ था CCP. You know CCP? Cut, copy, paste. Do you think assignments के अंदर सबसे जो ज़्यादा काम करना पड़ता है वो टीचर को करना पड़ता है? देखिए स्टूडेंट लिख के आपके हवाले कर दिया, अब आप बैठे हैं, आपने कहा ये किसने नहीं आता, जिसने कहाँ से लिखा है, फिर आप नेट पे गए, वहाँ पे आपने चेक किया, फिर आपने कहा अच्छा, तो असल में वो इम्तहान टीचर को होता है असाइनमेंट्स का। तो मैं वो इम्तहान अपना आज तक लिख नहीं दिया मैंने। आई टेक द असाइनमेंट्स, आई चेक देम, फिर मैं पीछे बैठ जाता हूँ, सबको बारी बारी कराता हूँ। आप बिलीव करें ऑन दैट डे ऑल द स्टूडेंट्स टुक देयर असाइनमेंट्स बैक कि जब वापस कर दें हम फिर देंगे। मैंने कहा ठीक है फिर देंगे। अब नेक्स्ट डे वो तैयार थे, मैंने टेस्ट नहीं दिया बिकॉज आई वाज अवेयर नाउ दे आर रेडी। तो देखिए हम क्या करते हैं कि वी गिव असाइनमेंट्स टू स्टूडेंट्स। बल्कि एक बार मैंने एक असाइनमेंट दी, यू कैन हैव डिफरेंट टेक्निक्स। मैंने असाइनमेंट दी, मैंने चेक करके नंबर लगा दिए और आई वाज अवेयर कि इन्होंने चीटिंग की हुई। अच्छा वो समझे कि टीचर को पता ही चला। मिड एग्जाम है, मैंने वही क्वेश्चन मिड में दे दिए। अब सारे बैठे, मैंने कहा देखिए ऑल ऑफ यू हैव गॉट 10 मार्क्स आउट ऑफ 15, 12, 13। इट्स नॉट, इट्स अ पीस ऑफ केक। अब देखिए फिर सारे बैठे, नहीं सर वो हमने तो भूल गए हैं। मैंने कहा इज दिस नॉट अ पार्ट ऑफ योर कंटेंट? इट इज। तो फिर देखिए सारे फेल हो गए। तो बेसिकली पर्पस, व्हाट इज द पर्पस?
The purpose is, if you're teaching something and your students they do not understand it, believe me, you are wasting your time, you are wasting the resources of your university, और एक मजाक हो रहा है. तो मेक श्योर कोरोना के दिनों में मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ ताकि आप इनको देख लें टीचिंग कैसे फिर मैं लिंगुअल कल्चरल एस्पेक्ट पे गया था. कोरोना में स्टूडेंट्स they would simply sign in and they would never listen to you. But what I used to do, जैसे क्लास स्टार्ट होती मैं पढ़ा के क्लास करता हूँ, नेक्स्ट क्लास शुरू. अगर 1 घंटे 60 मिनट की क्लास है तो 35 मिनट में इस काम पे लगाता था कि मुझे बताओ कल हमने क्या क्या पढ़ा. एंड आई वुड आस्क ईच एंड एवरी स्टूडेंट. और उसमें मैंने कहा था कि मैं एक बच्चे का नाम लूंगा, अगर 5 सेकंड तक जवाब नहीं आएगा तो रजिस्टर के पास पढ़ाई को एब्सेंट. मुझे बाद में बच्चों ने बताया कि हम आपकी क्लास से पहले सबको को मैसेज कर रहे थे, तुमने ये बोलना है, तुमने ये बोलना है, तुम तो एटलीस्ट इन सम वे वो कुछ ना कुछ पढ़ लेते थे. और जब आप बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली इट अफेक्ट्स योर ब्रेन समवेयर. वो आपके नॉलेज को इंटरनलाइज करता है. द नॉलेज दैट यू आर कम्युनिकेटिंग विद योर स्टूडेंट्स, इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर मेमोरी, इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर एग्जिस्टिंग नॉलेज. So these kind of activities you need to devise. So anyhow, now in your classes, as I started earlier, there are students from different walks of life. There are students from different languages. Anybody from Sindh here? आप में से कोई सिंध से है? अच्छा एक ही बस. साइन का क्या मतलब होता है? चलो मैं कराची के लिए पूछूं आपसे. साइन का सर साइन को किसको कहते हैं? ठीक है ना जनाब, प्लीज रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी. अब कोई कश्मीर से बैठा है, एनीबडी फ्रॉम कश्मीर? नहीं, चले पिंडी से होंगे ना कुछ लोग. तो पिंडी में साइन किसको कहते हैं? पागलों को कहते हैं. अब फॉर एग्जांपल एक टीचर है, वो सिंध से है और वो बच्चों से कहते हैं कि आप तो हमारे लिए साइन हैं. और बच्चे ज्यादातर पिंडी और कश्मीर के होंगे. What the point? बेशक आप एजुकेशन पढ़ाते हैं, साइकोलॉजी पढ़ाते हैं, आप मैं कहता हूँ कि सोशल साइंसेस पढ़ाते हैं, मैनेजमेंट साइंसेस, अकाउंटिंग है, मैथ्स है, जो पढ़ाते हैं, आपकी लैंग्वेज पे ब्रेक होनी चाहिए. यू नीड टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स, पर्टिकुलरली लैंग्वेज के अंदर. सिर्फ ये नहीं है. आई रिमेंबर इट वाज 2000 की बात है जब मैं मास्टर्स इन इंग्लिश कर रहा था. मेरे दोस्त हम केपी के आने से भी केपी से पश्तो स्पीकर्स. उसने मुझे अपनी शादी का कार्ड दिया. कहता है मुंतजिर भाई हमारा शादी है, आपने खाम खान है. आप देख रहे हैं ये लोग हंस पड़े हैं. क्यों हंस पड़े हैं? मैंने भी ये किया था. मैंने कार्ड पकड़ा, मैंने साइड पर रख दिया. मैंने कहा ये कौन सी तरीका है दावत देने का. बाद में पता चला कि जिसके बगैर शादी ना हो सके या वो दूल्हा होता है या वो खा वाला होता है. यानी इट्स मैंडेटरी. दिस इज मैंडेटरी टू कम टू माय. ऐसे ही हमारे केपी लगान यानी आपने खा होना है, जो मर्जी हो जाए आपने आना ही आना है. तो बेसिकली इन these kind of linguistic perspectives, they are very important to understand. It is very important to know. And please, मैं अपनी क्लास में बात करता हूँ स्टूडेंट से कि प्लीज अगर आपको मेरी कोई बात अच्छी न लगे तो आई एम द फर्स्ट पोस्ट ऑफिस. आप मेरे पास हैं, तो मुझे बताइए कि आपको ये मेरी बात अच्छी नहीं लगी और मुझे बताएं कि उसमें प्रॉब्लम क्या थी ताकि मेरी भी ट्रेनिंग हो. And I tell you, every semester I learn certain new things. अच्छा, टीचर्स के लिए हमेशा आपके डायरेक्टर में बैठे को पता होगा, यानी आपको कहते हैं कि मेरा इतना एक्सपीरियंस हो गया है. ऐसे ही है ना. आप कुछ लोग ऐसे जिनका 10 साल का तजुर्बा है यहाँ पे पढ़ाने का, किसी को 5 साल, 2 साल, 20 साल, 15 साल, ऐसे ही है ना. तो दैट इज ऑल फॉल्स. ये एक्सपीरियंस नहीं होता आपका. फॉर एग्जांपल मैडम हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर? 25 years. तो कहना इसलिए कि इनका 25 साल का तजुर्बा है? नहीं. There is difference between experience and tenure. Among us, most of us, our experience here is just 5 years, but we have been here for 30 years. And some of us, we have been here for 5 years, but our experience is of 50 years. Experience is when you learn something new and you try to execute that. But if like a machine, ये आप देखें ना मोबाइल फोन का नया मॉडल क्यों लेते हैं? वो एक्सपीरियंस है ना. एक्सपीरियंस में एक नया कोई मॉड्यूल आ जाता है, कोई एक नई चीज ऐड हो जाती है, कोई 3 कैमरे आ गए, कोई सेल्फी मोड आ गया, वो उसमें तो ये चीज भी आ गई है. दैट इज कॉल्ड एक्सपीरियंस. जो आईफोन की एग्जांपल आप लेना,
एक्स आया तो बड़ी फिरफिली मच गई, अब 14 में आ गया, 15 आएगा, फिर 20 भी आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड एक्सपीरियंस। लेकिन इफ योर टीचिंग इज द सेम एज इट वाज व्हेन यू स्टार्टेड टीचिंग, तो आपका एक्सपीरियंस एक सेमेस्टर का ही है। आपका टेन्योर 50 साल हो सकता है कि मैं 50 साल से नहीं, मैडम हम सॉरी मैंने ऐसे आपसे पूछे। तो आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो वी नीड टू फाइंड आउट, देयर शुड बी अ सिस्टम वेयर वी शुड फाइंड आउट where I was standing last year and where I stand now. What is the difference in my teaching? मेरी teaching में कोई असर पड़ा है कि नहीं पड़ा? The examples I was quoting last year, am I quoting the same examples this year? Yeah, is there any development? Okay. तो हाँ, जो multilingual classrooms होते हैं ना, language and culture they are interrelated. यानी आपके जो language के अल्फाज हैं, उनके अंदर आपके पास culture पड़ा हुआ है। So this is very important. जैसे आपने कराची की बात की, कराची के अंदर आप किसी को मामू नहीं कह सकते। लड़ाई आप क्या दें किसी को, आप इस बात के मामले लगते हैं, क्या कहते देखें कराची वाले को, मतलब फिजिकल तक बात पहुंच जाती है। लेकिन हमारे इस तरफ में इट मेक्स नो डिफरेंस। अब आप देखिए इंडिया में किसी को साला कह देना मसले कोई नहीं है, आज आप के भी किसी करके देखेंगे। तो ये कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं, टीचर्स दे नीड टू बी क्वाइट अवेयर ऑफ दिस। A word will be a very good word. एक गाड़ी खरीदी की थी केपी में, एक बंदा था अभी पंजाब का, तो उसने गाड़ी में केपी में गाड़ी बेचता हूँ, सस्ती गाड़ी थी, करोड़ रुपए की गाड़ी वो 60 लाख में दे रहा था। वो एक गाड़ी उसकी दी थी, क्यों? उस गाड़ी का नाम गलत था, यानी फ्रेंच में नाम था उसका, लेकिन पश्तो में उसका मतलब बड़ा गलत बनता था। पश्तो वाले उसका नाम था मोटीजे। तो नॉट इवन अ सिंगल कार वाज सोल्ड, लोगों ने गाड़ी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, पीछे मोटीजे लिखा होगा। तो दिस लैंग्वेज बेसिकली अफेक्ट्स अबाउट माइंड्स ऑफ पीपल, their situations, their performance. So it is very important that the discourses teachers are using, the linguistic items that you are using, they are very important and you need to be very careful about it. अब देखिए ना सराइकी के अंदर फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो पंजाबी में उसको कुछ और मतलब बन रहा होता है। At times they are similar, internationally भी ऐसा होता है। There are certain words जो internationally गलत हैं, हमारे यहाँ ठीक हैं, इंटरनेशनली ठीक है, हमारे यहाँ गलत है। तो एट टाइम जैसे वर्ड डेट है, अब देखिए ना डेट के जब तक हमें पता चला कि इसका मतलब तारीख और खजूर होता है, तो हम बड़ा अच्छे अंदाज में इसको इस्तेमाल करते थे। अभी रमजान आ रहा है, आप किसी को बंदा से जाए ना दुकानदार से कह दीजिए अंकल एक डेट तो दे देंगे। अब डेट का मतलब बदल गया ना, बिकॉज वी कम टू नो कि इट हैज सर्टेन अदर मीनिंग्स एज वेल। तो वी डोंट यूज द वर्ड डेट एट ऑल। व्हाई? बिकॉज वी डोंट नो। पाकिस्तान में एक लफ्ज़ बड़ा कॉमन हो रहा है, बॉयफ्रेंड वाला, मतलब अक्सर लड़के अपनी माँ अम्मी बस मेरी गर्लफ्रेंड है, और कुछ नहीं है। एक्चुअली गर्लफ्रेंड का मतलब होता है कि बस निकाह पढ़ी हो, बाकी सब कुछ ठीक है। इट मींस दिस। और उनके कल्चर में ही होता है कि फर्स्ट दे बिकम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, 2-3 बच्चे हो जाते हैं, फिर कहते हैं ठीक है शादी भी कर लेते हैं। सो वी नीड टू बेसिकली आइडेंटिफाई ऑल दीज थिंग्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि व्हाट टाइप ऑफ वर्ड्स वी आर यूजिंग इन द क्लासरूम, आर दे अफेक्टिंग आवर स्टूडेंट्स, are they affecting our colleagues? Because we are sitting in different cultures and at times we need to discuss this cultural diversity. Okay, ये मैंने आपसे बात की थी एलिजाबेथ मिलर की, कहती है कि क्लासरूम के अंदर whenever a teacher is teaching, students क्या करते हैं? They have oppositional behavior, resist जब कर रहे होते हैं ना, they oppose teachers because they are saying something wrong and maybe you comment on certain things. Second is changing topic. टीचर क्या काम करते हैं? वो पढ़ाते पढ़ाते टॉपिक ही चेंज कर देते हैं। जैसे स्टूडेंट पूछने के सर या मैडम ये क्या चीज़ है, वी टॉक अबाउट इट टुमारो, स्टेट के जैसे नहीं करें, बट वी रेजिस्ट। एंड इंपॉर्टेंट थिंग है कैमोफ्लेज रेजिस्टेंस। टीचर इस तरह से टॉपिक लेके देखते हैं, समझ नहीं आती, बच्चों को पता ही नहीं चलता है। तो रेजिस्टेंस बेसिकली इस वजह से आती है whenever your discourses are not appropriate or whenever you are using something which is not appropriate for some of the students in the classroom, it happens. अच्छा, इसका कोई solution नहीं है उस तरह से। आप ये मत सोचिए कि आप क्या करें, नो प्रॉब्लम, you learn with the passage of time. But you can discuss with students and then students can explain these things to you people. But ये आप देखिए थोड़ा सा, मतलब एट टाइम्स ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। तो ये किसी प्रेजेंटेशन में ऐड करती है ताकि वो देख भी लें और थोड़ा वापस आ जाएगा अपनी इधर तो ठीक है। इसी तरह से ये देखिए, यू कैन आल्सो फाइंड आउट दीज काइंड ऑफ थिंग्स इन द क्लासरूम। आप तो पढ़ा रहे होते हैं, बच्चे अपनी मर्जी कर रहे हैं, तो ये वो बच्चे हैं जो आपके सामने बैठे होते हैं, राइट। Well, now basically इसको हम कहते हैं, ये जो आप जब पढ़ा रहे थे क्लासरूम के अंदर अंडरग्रेड, तो इसको हम एंड्रोलॉजी कहते हैं।
It's not pedagogy. Pedagogy is teaching children, andragogy is teaching adults. So all these things that I just talked to you, they basically reflect andragogy, right? For example, typically andragogy means the understanding of the science and practice of adult learning. This contrasts to pedagogy. So please don't take your students as children, they are adults, and teach them as if they are adults, not as if they are children. And the moment you think that they are children, they will resist in your classroom and they will not participate properly. Classroom के requisites क्या होते हैं? Number one, knowledge. It's very important. If you are not prepared, definitely there will be problem. और क्या हो सकता है इसके अलावा? This point, right? Like you know how to deal with these students, how to talk to these students. अभी मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ जल्दी और आखिरी स्लाइड में आपको ये भी बताना है कि how you can become very good teachers in the classroom. ये tip है, you will enjoy that. Psychological perspectives. Again, culture, linguistic, gendered, and religious. These are very important points that we need to be very careful. अगर आप कोई हदीस सुना रहे हैं, अगर आप कोई कुरान की आयत कोट कर रहे हैं, पहली बात तो ये कि ऑथेंटिक होनी चाहिए और कोई भी टीचर कोई हदीस बगैर रेफरेंस के न सुनाए. If you don't have a reference, please avoid it because those students are more knowledgeable than you. वो बहुत ज़्यादा तेज हैं. आपको पता ही नहीं है. They are in millennium age. वो millennium की बात है तो you need to be very careful about it. Similarly, अगर आप gender पे अच्छा ethnicity इसमें लिखना भूल गया. बहुत से मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स में सरदार को, पठान को, फिर पंजाबी और सिंधी को बड़ा हिट कर देते हैं. एक सरदार साहब, एक पठान. प्लीज अवॉइड दिस थिंग. This creates a lot of problem and this creates this psychological issues with students at times. कि why are not trying to undermine people? If you want to give examples, you can say there was a person. कोई भी शख्स हो सकता है. And try to avoid these linguistic features of the classroom where anybody might feel hurt. Yes, and there is always strata. आपकी क्लास में at times there are students who are not from very good families, I mean financially, and there are students who are very good financially from certain families. So you need to be very careful about it. कभी-कभी होता है कि कुछ बच्चे ऐसे अपनी क्लास में उनकी वालिदा की डेथ हुई होती है और हम अमन की अहमियत पे लेक्चर दे रहे होते हैं, तो वो रोना शुरू कर देते हैं कि काश मेरी भी माँ होती. तो you need to take care of these things. बड़ी सटल चीज़ होती है ये. तो you need to be very careful about these things. किसी बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम तो नहीं है. एट टाइम हम एग्जांपल तहजीब बेकरी की दे देते हैं और क्लास में खड़ी वाले का बच्चा भी बैठा होता है. तो it's very pertinent, it's very important. Whenever देखिए यहाँ तो एग्जांपल ज़्यादा ना लें और अगर दें तो be very careful and try to identify the students कि what backgrounds they have, what is their थोड़ा बहुत आपको you should have some idea about that. ये कुछ रिसर्चेस इसके ऊपर हुई हैं बेसिकली कि स्टूडेंट्स में एंगर आता है. ये कहते हैं कि रिगार्डिंग क्रिटिकल मल्टीकल्चरलिज्म which critically investigates how inequality and injustice. अब होता है कि इसी याद होता है टीचर्स इवन की स्टाफ मेंबर को अक्सर कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी बड़ा ये जस्टिस नहीं कर रही है, यूनिवर्सिटी के अंदर इक्वालिटी नहीं है. So same is the case with your students. They are more prone to these things. At times they are looking at your teaching practices and then they are telling these kind of things कि टीचर ने ये कर दिया, टीचर ने वो कर दिया. तो इस मल्टीकल्चरलिटी को, मल्टीलिंगुअलिज्म को you need to take it to पर ये कुछ इस तरह की रिसर्चेस हैं. एक मैंने रिसर्च पढ़ी इसमें कहता है कि जो आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स होते हैं ना, नॉट ओनली साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स, आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स की बेसिस पे असेसमेंट इफेक्ट होती है. जब आपको पता चलता है कि मसलन मैं एक पंजाबी हूँ और ये भी पंजाबी है तो उसको पंजाबी होने का भी वो थोड़ा कभी कभी हम दे देते हैं. लास्ट वीक मेरी क्लास का CR फेल हो गया. ठीक है, हम अक्सर क्या होता है कि हम उस एहसान के नीचे दब जाते हैं किसी भी रोचक काम कर दिए. And I always tell the CRs कि ये आपकी ड्यूटी है, अगर आप कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते छोड़ दें क्योंकि इससे आपको कोई एडवांटेज नहीं होगा. तो वो बेचारा बाद में फिर समर कोर्स लगा रहा था कोर्स पास करने के लिए और फिर मैं नहीं पढ़ाना था. तो उसने स्पेशल रिक्वेस्ट की कि मेरा टीचर चेंज कर दिया. वो सोचते कि शायद इसमें मुझे भी प्रॉब्लम है. तो मैंने वैसे ही मैंने कोई और पढ़ने की कोशिश किया. तो बेसिकली ये चीज़ें आपको अफेक्ट नहीं करनी चाहिए. किसी का अच्छा कल्चर है, किसी के अच्छे कपड़े हैं, किसी शक्ल हो सकती है. तो अगर इन चीज़ों से आप इंप्रेस हो गए तो डेफिनेटली वी आर ह्यूमन बीइंग्स बट वी नीड टू बी एज फ्लेक्सिबल एज वी कैन. The role of teachers can be very vital towards race, ethnicity, discrimination or injustice in the classroom discourse by creating multicultural or anti-biased classroom interaction involving the content of the classroom. So this is what I've been telling you. Please develop the content of the classroom in such a way कि आपके students जो है वो आपसे नाराज ना हो. Every student speaks, but why that student does not speak in your class, that is a challenge for you. Try to find out the reason.
फिर एक होता है कुछ टीचर्स अपनी वो पावर की कोशिश कर रहे होते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक होती है रेफरेंट पावर, मैं नीचे ऊपर दूँ, लेजिटिमेट पावर। लेजिटिमेट पावर क्या है? अगर आप पीएचडी बना दिए गए ऑटोमेटिक आपके पास पावर आ जाएगी, आप वीसी बन जाएंगे, आपके पास पावर आ जाएगी। बट दिस पावर इज इंपॉर्टेंट, बट व्हाट मोर इज वो एक्सपर्ट पावर है, यू शुड हैव योर नॉलेज। देखिए आपके घर में एक प्लम्बर आ जाए, आप कितने डॉक्टर हैं ना आप लोग, लेकिन आप प्लम्बर के साथ मिलकर पड़ते हैं, अच्छा तो यूँ करते हैं, ठीक है, आप उसे पावर दे रहे हो। लेजिटिमेट पावर होती है अगर आपको पुलिस वाला रोक ले, जो ग्रेड 6 में होता है, आप सर कहते करते हैं उसको, ये लेजिटिमेट पावर है। एक्सपर्ट पावर वो प्लम्बर वाली है, बट द लास्ट इज रेफरेंट पावर। वो क्या होती है? पीपल, स्टूडेंट्स से शी इज माई आइडियल, ही इज माई आइडियल, द वे यू डू दे डू इन द सेम वे, द वे यू स्पीक दे स्पीक इन द सेम वे। तो इसी तरह से इसमें एक और पॉइंट है, ये क्लासरूम मैनेजमेंट की चीजें हैं। मैं थोड़ा आगे ये देखिए, ये व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्लासरूम? जी, कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लासरूम का? टीचर्स प्रेजेंस। टीचर इज नॉट चीफ गेस्ट। आई थिंक टीचर शुड बी द फर्स्ट वन टू बी इन द क्लास अगर टाइम हो गया तो। लेकिन हम क्या देखते हैं, 5 हैं, फिर हम सीआर को बुलाते हैं, जब आ जाए ना मैं ऑफिस मुझे बुला लेना है। नहीं, आपकी तनख्वाह शुरू हो गई है 8:10 पे, अगर आप 5 मिनट लेट जाएंगे तो 5 मिनट की तनख्वाह उस पर सवाल है, इट्स क्वेश्चनेबल कि आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। जी, ये क्लासरूम मैनेजमेंट। हम लोग क्या करते हैं? देयर आर 3 मेजर पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंगेजिंग, ऑफ मैनेजिंग द क्लासरूम। वो क्या है? इंगेज योर स्टूडेंट्स, तुम ये करो, तुमने ये करना है, कल असाइनमेंट लिख, वो बेचारे बच्चे तंग हैं, इंगेज किया ना आपने को। सेकंड, डिसिप्लिन है, आप 2 मिनट लेट है बाहर चले जाओ, अब अंदर नहीं आ सकते, आप डिसिप्लिन कर रहे हैं उनको। एंड थर्ड पॉइंट इज इंस्पायर देम। इफ यू इंस्पायर देम, वो बच्चे आपके आगे पीछे होंगे, तितलियों की तरह फूल के गिर के उड़ रहे होंगे। बट इफ यू आर नॉट बेसिकली इंस्पायरिंग देम, देयर विल बी प्रॉब्लम्स। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स से भी कहता हूँ, कॉलीग से भी कहता हूँ, अगर आपके स्टूडेंट्स आपकी बात नहीं मान रहे तो प्रॉब्लम आपके अंदर है। वो कैसे? अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये चीज़ ना। ये अभी क्लासरूम के अंदर नेट के अच्छा, क्लासरूम के अंदर 2 लोग होते हैं, एक होता है मिनिस्टर, एक होता है किंग। अब मुझे बताएं, आप किंग हैं कि मिनिस्टर हैं? ये एक पर्सनल पर्सपेक्टिव। आपके नजदीक आप क्या हैं? टीचर क्या होता है? किंग होता है या मिनिस्टर होता है? टीचर इज अ मिनिस्टर। क्यों? क्योंकि मिनिस्टर जो होता है ना, वो प्राइम मिनिस्टर के पास, प्रेसिडेंट के पास एक प्रेजेंटेशन बना के ले जाता है कि सर ये जरा देखिए। प्रेसिडेंट कहते हैं यार मुझे समझ नहीं आई, तो आप क्या कहते हैं? स्टूपिड, तुम्हें समझ नहीं आती? नहीं, आप दोबारा बताते हैं सर समझे ना, क्योंकि आपने ग्रांट ली होती है। यहाँ पे मिड टर्म एग्जाम और एंड टर्म एग्जाम में स्टूडेंट्स ने आपको ग्रांट देनी होती है। योर रिजल्ट्स रिफ्लेक्ट हाउ यू हैव टॉट। तो यू नीड टू गो टू द क्लासरूम एज अ मिनिस्टर, और आपने अपने किंग्स को एक प्रेजेंटेशन देनी है कि प्लीज ये जरा देखना, ये ठीक समझ आ रही है आपको? नहीं है? अच्छा मैं दोबारा समझा देता हूँ। एक और चीज मैंने पीछे से पावर भी की है, बहुत से टीचर में लेजिटिमेट पावर की फाइल होती है। वो क्या करते हैं कि इफ दे आर टीचिंग, स्टूडेंट्स कैन नॉट डिस्टर्ब देम। क्यों? दे कैन एज अ रिजल्ट वो सास वाले की कॉपी भेज देते हैं। अब क्या है, वो आगे जा रहा है, ये भी इधर लिखी जा रहा है। So I always tell my students, if you don't understand anything, ask me. I am here for you people. मैं कोई वो नहीं हूँ कि मैं आगे मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, मैं कोई DIG नहीं हूँ या कोई यूनिफॉर्म ऑफिसर नहीं हूँ। You can stop me. We have to interact mutually. और अब होता है कि 10 बच्चों को समझ नहीं आती, पूछते एक ही है, और जब एक पूछते हैं बाकी 15 को भी समझ आ जाता है। So that is very important. एक मिनट मैं देखता हूँ, चलिए छोड़ें ये। मैं शेयर दिस वन। आप देखिए पीछे की बच्ची है जो एक टीचर से बातें, एक रील है मैंने कहीं से निकाली थी। तो देखिए कि सर जो बातें आपने हमें बता दी हैं गूगल से ले रही होती हैं, इस तरह की चीज़ें वो बच्चों को ड्रा करते हैं, स्टूडेंट्स टीचर्स स्टूडेंट्स को तो डराना धमकाना, इसको बस हम छोड़ते हैं जी। मैं जस्ट टू स्टॉप इट। ये कुछ चीज़ें हैं। लास्ट पॉइंट, पनिशमेंट। अब क्या होता है कि whenever you are interacting with the students, you need to understand the psychological perspectives very well of the students. If you don't understand them, definitely there will be a lot of problems. How do you punish your students? Definitely you can't go for the corporal punishment कि आप उनको डंडे मारें, थप्पड़ मारें। तो punishment कैसे हो सकती है? If a student is late for his submission of assignment, तो आप क्या करते हैं उसको? मार्क्स काट देते हैं ना। ये क्या करते हैं? What do you do?
फिर हम बहुत कम पनिशमेंट देते हैं। नहीं, एक बच्चे ने असाइनमेंट नहीं जमा करी है, अब आप क्या करेंगे? लेट सबमिशन के मार्क्स करते हैं, ये पनिशमेंट है। ये इसको पनिशमेंट नहीं कहते हैं। याद है कि आप उनको स्कूल में इसका जनरल रीजन होते हैं, हम देते हैं। ठीक है, चलिए जनरल रीजन है, फिर क्या करेंगे? फिर साइन कम दे किया देते जाता है इसी तरह दोबारा जैसे सबमिट बाकी है। कर अदर एक्टिविटीज में देते हैं। फिर क्या होगा? सर मैं और एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके उसके मार्क्स कट देते हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए कि whenever students are doing things like that, I mean they are not running in the assignments timely, तो इसमें जो हमारे पास theories है ना, reinforcement की theories हैं, right? Either you go for positive reinforcement or you go for negative reinforcement. Negative ही है, आप उसके नंबर काट दें, आप उसको डांट डपट कर देते हैं। Positive reinforcement भी हो सकती है। उसने पहली बार अगर लेट है तो ये कह सकते हैं कि हमारा तुमने असाइनमेंट नहीं दी, ये कैसे हो सकता है? मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानती, ये हो ही नहीं सकता। अब ये पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट आप अगर यूं करेंगे तो अगले दिन आप देखेंगे सबसे पहले वो आपको असाइनमेंट टुकड़ा होगा। व्हाई? बिकॉज़ द स्टूडेंट थिंक्स द टीचर्स हैव वेरी गुड वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ थिंकिंग अबाउट मी, तो व्हाई आई एम डूइंग थिंग्स लाइक दैट। तो अगेन द सेम एलिमेंट बेसिकली ये कुछ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स हैं दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। The element of punishment है basically, it is necessary to punish by yelling or being direct to students. It can be indirectly by doing the opposite. So, so basically we need to identify how we are going to punish our students. क्योंकि if you are from these department of mental situation आपकी जो है, अगर आप इसको direct इसको hit कर रहे हैं and if you are giving, तो इससे होता है कि बच्चे फिर एंजाइटी का और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं when we have lot of negative reinforcement. क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स हैं तो हमारे पास they are the future of our country, so we need to try to deal with them accordingly so that वो थोड़ा सा positively perform करें in the classroom instead of doing that. ये एक important चीज़ है जी विजिटनेस। टीचर जब उधर देख रहा होता है ना, असल में वो इधर देख रहा होता है। When you are not looking at the students, actually at that time you should be looking at the students. And if it is not so, फिर problem इसी कहते हैं विजिटनेस। तो विजिटनेस refers to teachers awareness of what is going on in the classroom, और ये मतलब ये कि आपकी नजर पीछे आंखें लगी हुई चाहिए। This is the concept of vigilance. And if you cannot understand, if you cannot realize actually what students are doing and how they are sitting in the classroom, तो फिर आप उनको वो कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं ना वो ऑफ क्लास बिहेवियर्स में चले जाते हैं। ये तमाम वही चीज़ें हैं, लाइक you need to understand students psychologically कि why they are not taking part in the classroom. This is the problem basically, and due to which all these things take place. You know, there are psychological perspectives. Like you need to understand people be psychology का मतलब क्या होता है behavior. Then what type of behaviors students they are putting in, they are bringing forth. तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं आप उनको पढ़ाए ना तो वो ऐसे बैठे रहते हैं, आप उनको लतीफ़ा सुनाए ना यस सर वो आपके साथ में बदतमीज बोल कर देंगे। आप पॉलिटिक्स कहेंगे तो फौरन शुरू हो जाएंगे, आप रिलीजन कहेंगे तो फौरन शुरू हो जाएंगे, फिर आप जॉन डीवी की बात करेंगे या एडिसन की बात करेंगे फिर चुप हो जाएंगे। तो सम स्टूडेंट्स दे लाइक ऑफ क्लास बिहेवियर्स, सो वी नीड टू ट्राई टू ब्रिंग इनटू द ऑन क्लास बिहेवियर्स। अदरवाइज ये होता है कि क्लास का अक्सर टाइम ऑफ क्लास में निकल जाता है और जो ऑन क्लास के वो फिर हमारा होता है। एक बिजनेस लाइक एटमॉस्फेयर, आपके बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं दे नो इट वेरी वेल कि क्लासरूम को एक बिजनेस लाइक एटमॉस्फेयर में लेके चलना चाहिए। अगेन ये वही बात अफेक्टिव डोमेन की है, जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं कि वेयर योर स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन। आप एग्जांपल जरूर दें क्लासरूम के अंदर। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो हर चीज़ की एग्जांपल मजहब से दे रहे होते हैं। अब हर बंदा मजहब को नहीं इतना पसंद कर रहा होता तो वो फिर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। कुछ लोग होते हैं वो पॉलिटिक्स खेलते रहते हैं, कुछ लोग वो कल्चरल खेलते रहते हैं, कुछ लोग अपनी शख्सियतें अपनी पर्सनल बातें करते रहते हैं। बट इफ यू आर अनअवेयर ऑफ द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ योर स्टूडेंट्स तो फिर क्या है आपकी सारी बातें फिजूल है, कोई फायदा उस तरह से नहीं होता। इट इज मच ईजियर टू एस्टैब्लिश दिस एनवायरनमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग रादर देन लेटर। तो अक्सर आप शुरू में तो गप्पे लगा के वक्त ज़ाया कर देते हैं और बाद में कहते हैं या पढ़ते नहीं या पढ़ते नहीं करते हैं। ये टिप है आप लोगों के लिए इफ यू वांट टू बी अ वेरी गुड टीचर। बस जस्ट वेट फर्स्ट 30 years। फर्स्ट 30 years of teaching are difficult, उसके बाद मज़े ही मज़े। So just try to spend this time in a healthy way. अब last point and then we just invite up। मैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है थोड़ा, इसलिए मैंने इसको एक चीज़ मैंने स्किप कर दी है। 5 और से कुछ पॉइंट्स थे वो जो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में आते हैं, लेकिन दैट्स फाइन, नो इशू। आप अगर थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बात करें
और अगर आपको मैं ये कहूँ कि somebody is standing outside the door, तो आप मुझे बताएं आपने क्या देखा? Imagination. आपने इमेजिनेशन में क्या देखा? एक बंदा देखा ना? शलवार कमीज में था या पैंट कोट में? बंदा देखा ना? तो वो शलवार कमीज में देखा या पैंट कोट में देखा है? शलवार कमीज में। तो वेस्ट कोट थी? हालांकि देखिए ना मैंने कपड़ों को जिक्र किया है ना मैंने किसी को। This is my last point, a very important point in order to understand those linguistic diversity and cultural diversity. बहुत से लोगों ने उस बंदे को पैंट कोट में देखा, फिर टाई में देखा और टाई का रंग भी था। मैंने सिर्फ ये कहा कि मैन इज स्टैंडिंग आउटसाइड द डोर। Dear teachers, respectable teachers, whenever you are speaking to your students in the class, you are just telling them one thing, but in their imagination they are learning a lot of other things. आप एक शादी का जिक्र करते हैं, लेकिन बच्चे क्या समझ रहे होते हैं? वो अपने कल्चर के मुताबिक पूरा सिस्टम उन्हें शादी का होता है। अगर आपसे मैं ये कहूँ कि वहाँ पे शादी हो रही है, तो कुछ लोग देखेंगे कि मर्द अलग बैठे हैं, औरतें अलग बैठी हैं, कुछ लोग देखेंगे कि मर्द और औरतें इकट्ठे बैठे हैं, कुछ लोग देखेंगे वो खाना खा रहे हैं, कुछ लोग देखेंगे कि दुल्हन आ रही है। भाई आप अपने अपने इमेजिनेशन से उस चीज़ को कंसेप्चुअलाइज कर रहे होते हैं, उसको पोर्ट्रे कर रहे होते हैं। And same is the case with your students. Whenever you are teaching them, whenever you are telling them something, मसलन एक बंदा था तो उसको बचपन में कुत्ते ने काटा, जब कुत्ते ने काटा तो खून निकला तो हॉस्पिटल गया तो एक नर्स आई, नर्स ने उसको पट्टी की, इंजेक्शन लगाया और एक खास किस्म की हॉस्पिटल की स्मेल। वो घर आ गया 20 साल के बाद, एक टीचर ने पढ़ाते हुए कहा कल मैंने एक कुत्ता देखा, तो उस लड़के ने नर्स देखी, उसके ज़हन में वो नर्स आ गई। क्या होता है स्टूडेंट्स के क्लासरूम के अंदर फ्लैशबैक्स होते रहते हैं। अभी आप लोग मुझे सुन रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग अभी अपने घर गए थे, किचन देखा, फिर वापस आए हैं, आपने शाम को प्लान भी कर दिया बैठे बैठे। तो ये दिस इज बेसिकली दिस इज हाउ ब्रेन वर्क्स। ठीक है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज एस्पेक्ट्स। कभी भी स्टूडेंट्स को एट अ स्ट्रेच 7 घंटे का लेक्चर मारते हैं। मैं तो हर 10 मिनट के बाद एक कमर्शियल ब्रेक लेता हूँ, लतीफ़ा सुनाता हूँ, किसी स्टूडेंट से बात कर लेता हूँ, कोई और चीज़ करता हूँ। उससे क्या होता है कि जहाँ जब वो गए होते हैं ना, वो वापस आ जाते हैं। तो 5 मिनट के बाद मुसलसल 5 मिनट सुनने के बाद आपके स्टूडेंट्स ट्रैवलिंग में निकल जाते हैं। तो उनको वापस लाने के लिए आपको कोई ना कोई गिमिक, कोई ना कोई एक चीज़ करनी पड़ती है। तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। If you have any questions, any question? जी जी सर, मेरी जो अपनी एक्सपीरियंस रही है ना, सबसे जो मुश्किल काम लगा है टीचिंग में, इट्स मोटिवेशन। एक स्टूडेंट है कि हाउ टू रियलाइज के दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज रियली नेसेसरी फॉर यू, तो इस चीज़ को हम किस तरह से उनको रियलाइजेशन कराएं स्टूडेंट्स। बिल्कुल ठीक है। देखिए, as I told you, whenever we are using derivations, whenever we are using tenets, आप कोई भी कंटेंट एक्सप्लेन करने के लिए ना, आप एक्सप्लेनेटरी डिस्कोर्स यूज करते हैं। मसलन आप कहते हैं एक बंदा था, वो बंदे की बात करके फिर आप टॉपिक पे लेके आते हैं। ठीक है, कंटेंट को एक्सप्लेन करने के लिए जो इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स है ना, हमारा टीचर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ये जो मेरा एरिया नहीं था ना, मैं साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा था। टीचर्स का काम ये होता है कि वो एक लेक्चर तैयार करके लाते हैं और आके वो डिलीवर कर देते हैं, एंड दैट्स इट। ऐसा नहीं होता। आप लेक्चर डिलीवर करें एंड यू शुड बी प्रिपेयर्ड, वेल प्रिपेयर्ड एज फार एज योर सब्जेक्ट इज कंसर्न्ड। तो आपको कभी कभी जो प्रिपेयर लेक्चर किया वो कम भी करना पड़ता है, कभी ज़्यादा करना पड़ता है, कभी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। अगेन यू नीड टू सी द इंटरेस्ट्स ऑफ योर स्टूडेंट्स। आप ऐसे कितने लोग ऐसे, आप जब क्लास में कभी जाए ना, तो जाते ही शुरू ना हो जाए, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, हाँ जी क्या हो रहा है, तो अभी लास्ट क्लास में आपने क्या पढ़ा है, तो क्या आपको चीज़ वैसे नॉर्मली अच्छी लगती है। आप इससे क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि स्टूडेंट्स किस स्टेट ऑफ माइंड में बैठे हैं। कभी कभी ये होता है कि आपसे जो पहले बंदा गया है ना, वो डांट डपट के निकला है, आपने तमीज़ नहीं है, आप ये नहीं करते हैं, मैं आपको देख लूँगा, आप तैयार ना करिएगा, आप बच्चे क्यों बैठे हैं, आप आए, आपने कहा जी लेसन तैयार है, यस सर, ठीक है। स्टेट ऑफ माइंड देखिए लोगों का। As I told you earlier, that you need to be a psychologist. You need to see the behaviors of people. स्टूडेंट्स का पता होना चाहिए कि कभी-कभी आपको थोड़ा करना पड़ता है। चलिए कोई मसला नहीं, हाँ जी आप बताएं, आप क्या बोलते हैं, हाँ जी आप क्या बोलते हैं। तो ट्राई टू एंगेज देम। जब एंगेज हो जाएंगे फिर अपना वो कंटेंट एक्सप्लेन करें एंड ट्राई टू एक्सप्लेन दैट कंटेंट टू देम
in a way they like, not in a way you like. और सेकंड पॉइंट ये है कि अक्सर हम अपना नॉलेज ज़्यादा शेयर कर रहे होते हैं और हम इंटरनलाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं. कोर्स तब कंप्लीट होता है व्हेन यू ट्राई दैट योर स्टूडेंट्स आर इंटरनलाइजिंग, राइट? एंड इफ दे आर नॉट इंटरनलाइजिंग, और दूसरा काम ये करें कि रोजाना अपनी क्लास से पहले 10 मिनट इस बात पे लगाएं, हाँ जी आप बताइए कल हमने क्या पढ़ा था, हमने क्या कल पढ़ा था, और 2-3 क्वेश्चंस पोज कर दें. तो दिस थिंग विल डेवलप इंटरेस्ट इन प्रैक्टिस और समथिंग, दैट इज वेरी इजी टू, आई थिंक. इसलिए मैंने कहा ना कि अगर आप if you are a good scholar, that is good, but at the same time you should be a very good teacher. अगर आप एक good scholar हैं तो आप एक writer हैं, marks को नहीं. And if you are if you have got very good knowledge but you cannot communicate, फिर घोड़ा है सवाल कोई नहीं. But you need to have both the things. ये दोनों चीजें एक अच्छे उस्ताद बनाती हैं. बातें तो आपकी बहुत अच्छी हैं लेकिन आइडियल हैं. मतलब जस्ट विद इन 1 hour और 75 स्टूडेंट प्लस को कंट्रोल करना, सब कुछ करना, ईच एंड एवरीथिंग, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट. जी, again it's a very good question. स्पेशली ये एक मसला होता है at times. नंबर ऑफ आपकी जो- स्टूडेंट्स अगर हो ना मैनेजेबल तो इट्स ओके, बट इन सच अ बिग क्लास इट्स क्वाइट डिफिकल्ट. No, this can be one of the variables that we can look into. But again, being a teacher, for example, we can look into this aspect. We can look into this thing कि उसमें कितना number of students ज़्यादा हैं. हमारा problem अक्सर ये होता है कि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि कभी-कभी होता है कि टीचर ना एक स्टूडेंट से 2-3 बातें कर लेना, हम उसी के साथ ही अपने आप इंगेज कर लेते हैं. अब मेरी क्लास में ये होता है कि मैं ये कहता हूँ कि मसलन अगर ये एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा है ना, अब नेक्स्ट सवाल ये नहीं पूछ सकती जब तक कि 5 लोग और सवाल पूछें. देखिए, अवेलेबल जो रिसोर्सेज हैं ना आपके, द रिसोर्सेज दैट यू हैव, उनको रखते हुए अपने आप को परफॉर्म करना इज कॉल्ड एक्सीलेंस. लेकिन देखिए, अगर हम प्रॉब्लम्स को देख के पीछे हटने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली फिर भी हम उस तरह से नहीं कर पाएंगे चीज़ों को. ये तो प्रॉब्लम्स तो हैं. इवन मैं आपको बताऊँ 25 लोग भी ज़्यादा होते हैं क्लास में अगर देखा जाए तो. क्यों? हम ये होता है कि हमारे पैराडाइम्स बन जाते हैं ना कि इतने स्टूडेंट्स हैं, ये है, ये तो डिफिकल्ट हो गया है. मैं आपको बताऊँ ऐसे भी क्लासेस हैं जहाँ पे 90 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं तो बुकिंग में कॉस्ट 75 होते हैं. अब हमारे यहाँ 50 होते हैं, हम कहते हैं कॉस्ट 40 हो. तो वो हम चूँकि प्रिपेयर हो चुके थे खास काम के लिए. अब देखिए, जो लोग सुबह नाश्ते में 2 पराठे खाते हैं ना, वो उनको एक दे तो वो नाराज होते हैं, और जो एक खाते हैं उनको आधा दे तो वो नाराज होते हैं. तो वो 2 वाला कहता है यार तुम आज तो एक पे भी राजी नहीं हो, राइट? तो इस तरह ये बेसिकली रिलेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स है. इंसान का जो दिमाग है, इंसान का जो पोटेंशियल है, वी कैन डू एवरीथिंग व्हेन वी वांट टू. द क्वेश्चन इज कि हमें रेज किस तरह से किया गया, इन व्हाट पैराडाइम्स वी हैव बीन रेज्ड. तो कुछ लोगों को देखिए ना, कुछ लोग कहते हैं कि उसने कहा था कि गरीब के मजबूर लिखी, उसने कहा हमारे नौकर बड़े गरीब हैं, उनके पास मेहरान गाड़ी है, हफ्ते में 1 बार मटन खाते हैं, 4 बार कुछ बेचारे चिकन खाते हैं, राइस बहुत कम बनाते हैं. एक गरीब की ये भी डिविजन है, और जो गरीब खड़ा होता है यहाँ अगर ये गरीब है तो हम क्या है. तो ये ऑल दिस इज बेसिकली रिलेटेड. वी कैन परफॉर्म व्हेन वी वांट टू, बट द क्वेश्चन इज देखिए, अगर आपके स्टूडेंट्स आपको सुन नहीं रहे, आपके साथ इन्वॉल्व नहीं है, फिर मुश्किल है कुछ करना. और अगर कोई ये कर देखिए, आई डोंट नो आप यहाँ काउंसलिंग आवर्स हैं कि नहीं है. मैं तो नॉर्मली 2-2, 3-3 स्टूडेंट्स के मैंने लगाया था कि आपने आगे जाकर मुझे मिलना, हम बातचीत करेंगे. अच्छा, मैंने अपने ऑफिस में बकायदा जिनको स्पेस के रखे होते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं मुझे खाएं ये नहीं थोड़ा सा. फिर ये कि वो कभी-कभी अपने मसाइल भी बताना शुरू कर देते हैं. उससे मुझे एक आइडिया होता है कि माय टीचिंग प्रैक्टिस से मुझे मजीद क्या करना चाहिए. क्योंकि इफ यू आर अनअवेयर ऑफ द साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ योर स्टूडेंट्स, मुश्किल है पढ़ाना. कैसे समझा सकते हैं एक बंदा जो परेशान बैठा है, पता नहीं अगली क्लास में क्या होगा, वो आपकी बात सुनेगा. यू शुड नेवर टीच एम्प्टी बैलिड एंड कंफ्यूज माइंडेड पीपल. ना है ना, हम रेडियो पाकिस्तान थोड़ी है कि बटन दबा दें और रेडियो पाकिस्तान चला हुआ है. गाड़ी में गाने लगा लेते हैं कभी-कभी, कोई तकरीर लगा दी और आप कभी भी लगा रहे होते हैं, वो तकरीर चल रही होती है. तो टीचिंग इज नॉट लाइक दैट. एवरी वर्ड इज टू बी रिटन विद गोल्ड. वो गोल्डन वर्ड्स होते हैं एंड पीपल दे शुड लिसन टू दैट. मेरी तो स्टूडेंट में कोई एक बच्चा बोले ना तो मैं कहता हूँ 1 मिनट आप इधर रहना, अब यही बात हम सबको बताएं, हम सब सुनेंगे, हम सब हंसेंगे. क्यों? एक जंगल में 2 शेर नहीं हो सकते. एक क्लासरूम में एक ही बंदा बोल सकता है, या टीचर या स्टूडेंट. ठीक है ना? तो अगर इस तरह डिस्ट्रप्टिव, अगर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, अगर आपकी आवाज़ वहाँ तक नहीं जा रही तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव इशू हो सकता है कि वहाँ तक आवाज़ नहीं पहुँच रही. लेकिन अगर वो बैठे हैं, आपकी आवाज़ जा रही है, तो
they should understand, they should realize whatever you are teaching them. और nothing is perfect. Perfection तो कहीं भी नहीं है, आप नहीं चले जाएं, आप हार्वर्ड में जाए वो भी टीचर्स कंप्लेन ही कर रहे हैं कि यहाँ भी प्रॉब्लम है, और आप एक चैप्टर नंबर 32 के स्कूल में चले जाएं वो भी कंप्लेंट्स कर रहे हैं कि यहाँ भी प्रॉब्लम्स है. Why? Because of our relative understanding and different paradigms that we develop. डाइवर्सिटी है ना, स्टूडेंट भी सारे एक जैसे नहीं जी है. हाँ, जी हाँ. बिल्कुल. तभी तो आप टीचर हैं. टीचर को इतना नॉर्मेटिव पावर क्यों दी गई है? जब बच्चा घर से निकलता है तो माँ क्या करती है? उस्ताद की इज्जत करना, इसीलिए करते हैं. अदरवाइज वो क्यों कहेंगे उस्ताद की इज्जत करें? क्योंकि माँ को भी पता है कि ये उस्ताद इस बिगड़े को ठीक कर सकता है, ये हमसे कुछ नहीं कर सकता. जी सर. I think teaching is an art basically to engage the students. उसमें आपने एक point mention किया था कि syllabus learning machine. जी जी. Syllabus learning is definitely a mandatory part of teaching, but उसमें क्या होता है कि syllabus learning, I think that is a byproduct of the engagement process. So if you effectively engage the students in the entire classroom experience exercise, so consequently the result will be the syllabus. Syllabus automatically is a byproduct of कुछ learn हो जाएगा. लेकिन problem ये है deficiency हमारे part में क्या exist करती है, वो ये है कि most of the time teacher is unable to engage the students in the process. उसमें आपने ये बताया basically ये lingua cultural, उसमें this is basically the technique to engage the students in the entire process. जी जी. देखिए आप जिस भी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं ना, तो उनकी जो अच्छी वैल्यूज हैं ना, आप उनको अप्रिशिएट करते रहें. वो देखें, वो अपने कदम भी छुएंगे कि सर को तुम्हारा सारा पता है, मैडम को तुम्हारा सारा पता है. वो इंगेज हो जाएंगे ना, आप उनकी अफेक्टिव डोमेन को एड्रेस करनी चाहिए. हम उनकी अफेक्टिव डोमेन को एड्रेस करते नहीं, हम कॉपरेट करते रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स. इनकी वैल्यूज क्या हैं, बिलीव्स क्या हैं. कंटेंट आप पढ़ाते हैं, लेकिन कंटेंट को पढ़ाने के लिए आप एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ बयान कर रहे थे ना, तो दे आर बेसिकली मोर इम्पोर्टेंट. एक चीज़ ये है, देखिए सिलेबस तो कंप्लीट कराना है ना, और वो हो भी जाता है, लेकिन उसको इंटरनलाइज करना है स्टूडेंट्स को. अच्छा, मैंने एक और काम किया हुआ है, मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, और मैं सिर्फ उस पर जो वीडियोज आती हैं ना, उससे मैं स्टूडेंट शेयर कर दूँगा, उसको देखें. और मैं स्टूडेंट से भी कहता हूँ कि इसको सब्सक्राइब नहीं करता, कोई जरूरत नहीं सब्सक्राइब करने की. ठीक हो गया. अब उसकी एक और चीज़ है, मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूँ कि वीडियोज़ बनाएं, वो बनाते हैं, मैं अपलोड कर देता हूँ, मैं कहता हूँ खुद देखिए इसको आप. तो आप अपने बच्चों से ये भी कह सकते हैं. अब देखिए ना, अभी अगर आपने देखो बेस्ट यूनिवर्सिटी टीचर अवार्ड जो है HEC का, उसमें एक बकायदा पार्ट है, कोई 14 के 20 नंबर इसी चीज़ के हैं कि आप यूट्यूब और सोशल मीडिया कितना यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स के लिए. स्टूडेंट्स के अपने ब्लॉग्स देखिए, असाइनमेंट्स फॉर्म में, वो अपने फेसबुक पेज में वहाँ पे अपलोड करें. लोग, वो बच्चा को, वो मेरा ब्लॉग देखा आपने, मेरा ब्लॉग मैडम के पेज पे देखा आपने, वो मेरी वीडियो बनाई है मैडम की यूट्यूब पे देखी आपने. तो उससे क्या होता है कि देखिए वो इंगेज करें ना इन दिस वे कि वो कुछ लर्निंग करें. मुश्किल काम मुश्किल है, देखिए पहले 30 साल की मुश्किल है, बाकी आसानी है. टीचर का काम थोड़ा सा